Hello students, how are you? I hope that you all are well and safe at your home. So be safe and stay at home. So in last class we have done exercise 3.1. In today's video, in this class we will do exercise 3.2 from our third unit, understanding quadrilaterals. So let's start. First question is on the board. Find x in the following figures. जो भी आपको यहाँ पे 1 and 2 a and b दो फिगर दिए हैं, एक है ट्रायंगल और एक है पेंटागन, उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, जो x 125 एंड 125 तीन आपको एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है. देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, कोई भी आपको पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होता है 360. So that's why x plus 125 plus 125 is equal to 360 sum of exterior angles. Reason given. Then 125 plus 125 250. X plus 250 equal to 360. Then this 250 is in addition here. इस साइड जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन में, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा. तो x equal to 360 minus 250 and 360 minus 250 we get 110. So the value of x is equal to 110 degree. Okay. Now question number B. In this a pentagon given. Here also exterior angle x given 60. This is the sine of 90 degree and 60. And here angle not given, but the interior angle is 90. So this exterior angle is also 90. Because interior plus exterior always कितना होता है 180. और लीनियर पेयर में अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल भी 90 आता है. सो अगेन वी यूज द सेम फार्मूला, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 360 बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360. देन 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 वी गेट 310. x plus 310 equal to 360. This 310 जब इधर आएगा then it will turn negative because it is here positive. X equal to 360 minus 310 and we get the value of x by subtracting x equal to 50 degree. Okay. Now move to the question number 2. Find the measures of each exterior angle of a regular polygon. कोई भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है. तो उसके लिए फार्मूला है 360 अपॉन n, यानी नंबर ऑफ साइड से हम 360 को डिवाइड कर देंगे बिकॉज सम ऑफ एंगल्स 360 है और वो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जितनी उसकी साइड्स है. देन 9 साइड्स फार्मूला जो कि आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने लिखवाया है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n. देन n इज नंबर ऑफ साइड, तो पुट 360 अपॉन n यानी कि 9 एंड 9 से जब डिवाइड करेंगे 360 को वी गेट 40 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री इन पार्ट ए. नाउ पार्ट बी, 15 साइड्स. सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल व्हेन देयर आर 15 साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन. सो अगेन द सेम फार्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360 upon n and the value of n is 15. So 360 divided by 15 और 360 को 15 से डिवाइड करने पे we get 24 degree. Okay, take the screenshot. Okay, now question number 3 and 4 is on the board. Look, question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of exterior and measure of an exterior angle is 24 degree. Okay, in last question sides वो given, sides given थी and हमने angle निकाला था. In this question angle is given, we need to find the side. Formula will be same here. Okay, regular polygon and measure of an exterior angle यानी कि each exterior angle. So each exterior angle of a regular polygon will be 360 upon n, same formula. When we have the value of n means number of sides, we put here and exterior angle will be find out. But
if we have angle, then we put angle this side and number of side will be find out. Okay, in this equation two variables are there. One is exterior angles, one is number of side. दोनों में से आपको एक चीज पता होगी, नंबर ऑफ साइड पता होगी तो हम यहाँ पुट करेंगे, एंगल्स अगर आपको पता है तो आप इक्वल टू के इस साइड पुट करेंगे. ओके, 360 जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको 24 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल है वो पता है. देन वी पुट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू साइन, इन राइट हैंड साइड 360 अपॉन n. देन दिस n कम दिस साइड, हियर इट इज इन डिवाइड, यहाँ पे आएगा तो वो 24 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 24n इक्वल टू 360. Now this 24 go this side, then it will divide because it is here in multiply. So n equal to 364 upon 24. 360 को 24 से डिवाइड करने से we get 15. So number of side means n equal to 15 sides. Now question number 4. How many sides? Again आपको sides find करनी है. Does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल बता रखा था, इसमें आपको इंटीरियर एंगल बता रखा था. देन लुक हियर, पे अटेंशन. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला क्या था, मैंने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन में, n-2 मल्टीप्लाई 180. ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. और अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है देन यू कैन यूज दिस फार्मूला. ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ रहेगा एज कंपेयर टू जो मैंने प्रोसीजर यहाँ पे यूज किया है. आप क्या कर सकते हो, जब आपको इंटीरियर एंगल पता है देन यू कैन फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल के अंदर, और एक्सटीरियर एंगल का फिर सेम फार्मूला यूज करके जिसमें आपको सिर्फ 360 से कैलकुलेट करना है, दैट फार्मूला यू कैन यूज. लुक हियर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज कितना होता है, 180. Interior angle is given, it is 165 and plus exterior angle equal to 180. इंटीरियर एंगल जो यहाँ पे पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 180 से माइनस होकर 15, यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपके पास 15 डिग्री आ गई. नाउ दैट सेम फार्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n. एंगल कितना है 15, तो 15 इक्वल टू 360 अपॉन n. n इधर आएगा, then 15 n equal to 360, and जब 15 उधर जाएगा तो n equal to 360 divided by 15 and we get 24. number of sides means n equal to 24 sides. और अगर आप ये वाला क्वेश्चन फाइंड करते हैं, इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, तो ये फार्मूला है आपका ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने का. तो ईच इंटीरियर एंगल कितना है अपने पास, 165. ईच इंटीरियर एंगल इज 165. देन ये n यहाँ पे आ जाएगा, 165n इक्वल टू 180n से मल्टीप्लाई होगा तो 180n, एंड 180 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 360. ये 180n इधर आएगा, देन 165n माइनस 180n इक्वल टू माइनस 360. एंड इन दोनों के कैलकुलेशन से अपने पास आ गया माइनस 15n इक्वल टू माइनस 360. माइनस से माइनस कट, n इक्वल टू 360 अपॉन 15, और उससे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24. ओके, यू कैन यूज बोथ द फार्मूला. दिस इज ऑल्सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, so now question number 5 is on the board. Question number 5 has two parts, A and B. So let's see first A part. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 20 degree, 22 degree? Means क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, रेगुलर, ठीक है, जिसका ईच एंड एवरी यानी कि हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो. ओके, सो लेट इट बी ए रेगुलर पॉलीगन. मान लेते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है. अगर रेगुलर पॉलीगन है तो इसके नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं. सो लेट्स फाइंड इट्स नंबर ऑफ साइड्स. इसके नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करते हैं. सो फार्मूला, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, each exterior angle of a regular polygon, formula 360 upon n.
ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल हमने मान लिया कि 22 डिग्री है, देन 22 इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन इधर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई एन इक्वल टू 360, और एन की वैल्यू के लिए 22 उधर जाएगा तो 360 अपॉन 22, जो कि रिड्यूस होके 180 अपॉन 11, इससे आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। यानी कि जो साइड है, नंबर ऑफ साइड वो बता रहा है कि 180 अपॉन 11 है, लेकिन नंबर ऑफ साइड जो है इट मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, वो या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 10 होंगे, एक परफेक्ट नंबर जरूर आएगा। ओके, सो एंड नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, यानी कि वो फ्रैक्शनल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती कि भाई 3.5 साइड है, 4.5 साइड है, ऐसे तो नहीं हो सकती, या तो 3 होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी। So it is not possible to have a regular polygon with each exterior angle equal to 22 degree. Okay, now question number B, can it be an interior angle of a regular polygon and why? क्या ये उसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल तो 22 नहीं हो सकता, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? सो अगेन लेट इट बी ए रेगुलर पॉलीगन, मान लिया कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, सो लेट्स फाइंड इट्स साइड। अब इसकी साइड्स फाइंड करते हैं, तो जब इंटीरियर एंगल हमें पता होता है तो भी हम साइड्स पता लगा सकते हैं। वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। इंटीरियर एंगल हमने मान लिया कि जो ये 22 डिग्री उसमें एक्सटीरियर बताया था, इसमें इंटीरियर है, तो इंटीरियर 22 प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 22 उधर जाएगा, तो 180 में से 22 माइनस होने से आ गए 158। नाउ द एक्सटीरियर एंगल इज 158, सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 158 है, तो 158 इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन इधर आएगा तो 158 से मल्टीप्लाई होगा, एंड 158 उधर जाकर 360 को डिवाइड करेगा। अगेन वी हैव अ फ्रैक्शनल नंबर, अगेन वी हैव अ रेशनल नंबर 180 अपॉन 79। ओके, तो ये भी एक परफेक्ट नेचुरल नंबर नहीं है, 180 अपॉन 79, सो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर एंगल बताया है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so now question number 6 part A on the board. Look, what is the minimum यानी सबसे कम interior angle possible for a regular polygon and why? Means if a regular polygon is there, then किसी भी regular polygon में सबसे minimum सबसे कम interior angle कितना हो सकता है? Okay, means regular polygon जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल इक्वल है, तो ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसके अंदर उसके जो इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, कि उससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। सो वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। एक्सटीरियर एंगल्स का जो टोटल है वो कितना होता है? कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल 360 होता है, वी नो दैट, एंड इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कब होगा? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 ये तो फिक्स है। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू सबसे कम कब होगी? जब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों को प्लस करके 180 आना है, ये वाली इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल इधर जाता है माइनस करता है, तो 180 में से जितनी ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे उतना ही इसका आंसर कम आएगा। इसीलिए मिनिमम इंटीरियर एंगल इज पॉसिबल इन केस ऑफ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाए। ओके, क्लियर है? इंटीरियर एंगल की वैल्यू सबसे मिनिमम कब होगी? जब उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे मैक्सिमम हो। देन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फार्मूला 360 अपॉन n होता है, यानी कि 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाती है। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कब फाइंड कर सकते हैं? जब ये नंबर सबसे छोटा होगा, यानी जितने कम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। यानी सपोज इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो 36 आ गया, सॉरी 360 नहीं 36, एंड
फिर इसको 360 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 40 आ गया। फिर 360 को सपोज हम 6 से डिवाइड करें तो आपके पास 60 आ गया। मीन्स जैसे जैसे साइड्स कम हो रही हैं एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n होता है। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज पॉसिबल विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड। सबसे कम कितनी साइड हो सकती है पॉलीगन में, अगर आपको ये पता लग जाए तो फिर आपको एंगल की वैल्यू पता लग जाएगी। सो टेल मी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल इन अ पॉलीगन। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था कि कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम एट लीस्ट आपको कितनी साइड चाहिए, एट लीस्ट 3 साइड चाहिए। विदाउट 3 साइड तो पॉलीगन ड्रॉ नहीं होगा। 2 साइड से वो ओपन रहेगा, थर्ड साइड जब उस पर लगा देंगे देन इट विल बी क्लोज एंड अ पॉलीगन। सो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इक्वल टू 3। तो साइड्स अगर 3 हैं तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n 120। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 120 डिग्री हो सकती है। ओके, देन इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180। देन यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता लग गई 120। ओके, देन 120 उधर जाके माइनस करेगा तो इंटीरियर एंगल की मिनिमम वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। सो द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। Okay, take the screenshot, then we will do part B. Okay, so now question number 6 part B is on the board. Look, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? जो कि आपने पार्ट ए में भी फाइंड किया था। मैक्सिमम पहले हमने मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया था, उसी की हेल्प से हमने मिनिमम इंटीरियर एंगल को फाइंड किया था। नाउ लुक हियर, वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 एंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला है 360/n। बट ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये n मिनिमम होगा। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, जब सबसे कम साइड होंगी, जितनी कम वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम होगी। सो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इज 3। सबसे कम 3 साइड होती है। विदाउट 3 साइड पॉलीगन कैन नॉट बी फॉर्म। देन ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर ट्रायंगल, अगर 3 साइड्स होती हैं तो वो ट्रायंगल होता है, और अगर वो रेगुलर है तो वो रेगुलर ट्रायंगल हो गया, जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन ए में भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे भी रेगुलर ट्रायंगल था यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर ट्रायंगल मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 360/3 और 3 से डिवाइड करने से वैल्यू आ गई 120। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ओके पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 120 डिग्री। टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, in this way we have done exercise 3.2. In next video we will do exercise 3.3. Till then, take care, bye.